हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है भूगोल का चैप्टर यानी ज्योग्राफी। ज्योग्राफी चैप्टर जो है 27 है, जिसमें आज हम करेंगे पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन इन इंडिया यानी भारत जनसंख्या संगठन। काफ़ी महत्वपूर्ण ये चैप्टर है हर एक क्लास के बच्चों के लिए, चाहे वो यूपी बोर्ड के बच्चे हों, चाहे बिहार बोर्ड के बच्चे हों, चाहे सीबीएसई के हों, चाहे एनआईएस के बच्चे हों। अगर उनके सिलेबस में पॉपुलेशन एंड कॉम्पोजिशन इंडिया है तो ये टॉपिक उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। कहते हैं ये टॉपिक और भी महत्वपूर्ण उन बच्चों के लिए होता है जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, लाइक यूपीएससी हो गया, एसएससी हो गया, कोई भी कंपटीशन हो, उन सभी के लिए ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है। लेकिन आपको पता है कि टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। The next point is the most important here. Religious compositions. There is the most important point here. Indian society is divided into the large number of religious community here, but broadly there is a 7 major religions here. Broadly is a only 7 major religions here. The majority of people follow one of these 7 major religions here, and there is the Hindus is the first, Islam second, Christians third, and is Jainism, and is a Buddhism, Sikhism, and Moravism. There is the most emphasis Judaism here. The Hindu are the largest religious community of India. Hindu is the largest religious community in India. According to 2001, the census is the 80.5% of population follow this religious. There is the most important point here. Followers of this religion are more concentration in the northern plain and the northern part of the plateau regions here. However, there is significance in numerous in all parts of country, except a few northern eastern states and union territory of Lakshadweep. But the distribution of the other religious communities is less is continuously, and there is only some is a pocket in which they have a large concentration. The largest number of Muslim population in the Uttar Pradesh, followed by there is a West Bengal and Bihar. But the Muslim population make a large proportion of the total population in Jammu and Kashmir and the Union Territory of Lakshadweep. Apart from this above the mentioned state and Union Territory, other states there is a Muslims have a significant presence is a more than national average. Are Assam and Kerala. If we look at the patriarchal distribution, then it is observed that most of the state are sketch is over northern Great Plain except of Kerala and Jammu and Kashmir. The largest concentration of the Christians is found in the state of Kerala and followed by there is Tamil Nadu and Andhra Pradesh. But if we look at the position of the total population, then it is found in some of the eastern state, namely the Mizoram, Meghalaya and Nagaland. As for a Sikh are the concerned is more than 3 upon 7 Sikh is a population are found in Punjab alone. Besides Punjab is another owing districts of Haryana and Rajasthan also have a concentration of Sikh population. Apart from this state, authorized resign of the Uttarakhand and National Capital Territory of Delhi have a significant number of Sikh population. As for a Buddhist and Jainis is a concern, there is a Maharashtra has the largest number of population belong to be both the religions. Apart from a Maharashtra, traditionally spoken of Buddhist at the Ladakh area of Jammu and Kashmir. And Dharamsala
is a and the surrounding district of Himachal Pradesh, Sikkim, Arunachal Pradesh and Tripura. Similarly, beside the Maharashtra, Jais has a significant presence of the state of Rajasthan, Gujarat, Madhya Pradesh and Chhattisgarh. And the last year, Zoroastrians are such a very few number, and the most of them are found in the around Mumbai in Maharashtra. Mumbai in the Maharashtra here, there is a found of religious of Zoroastrians. There is the most important here table. There are population by the religious of 2001. There is the most important table arrive here. In this table, there is population by religious in 2001. There is the most important religious group here and percentage. There is a first year Hindus is 80.5%. The second year Muslims is a 13.6%, and Christian here 2.33%, and Sikh here 0.86% only, and Buddhist is a 0.76%, and Jains here 0.40%, and the other is a 0.53%. There is the most important point here. There are notable point for your notebooks. There is the most important here maximum here living here Hindu in 80.5% of total population. अगला जो पॉइंट आया है हमारे समक्ष अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए धार्मिक संरचना कि भारत में धार्मिक संरचना कैसी है। भारत में देखा जाए तो धार्मिक संरचना की बनावट भी बहुत ही विभिन्नताओं से भरी हुई है। जिस प्रकार हमारे देश में अगर विभिन्नताओं से भरा कहते हैं जो है क्लाइमेट है, ठीक है, पर्यावरण है, उसी प्रकार विभिन्नताओं से भरा भाषा है, तो उसी से प्रकार जो है यहाँ पर धर्म भी डिफरेंट टाइप्स के होती हैं। भारत समाज विभिन्न धार्मिक जो है संप्रदायों में बटा हुआ है, परंतु मोटे तौर पर 7 प्रमुख धर्म है। अधिकांश लोग इन्हीं 7 धर्मों में से किसी एक धर्म के अनुयायी होते हैं। ठीक है, ये 7 धर्म देखा जाए तो हिंदू है, इस्लाम है, ईसाई है, जैन है, बौद्ध है और सिख और फारसी है। कहते हैं हिंदू धर्म के अनुयायियों की संख्या भारत में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, ये 7 धर्म काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो हिंदू के जो अनुयायियों की संख्या सबसे ज़्यादा है। सन 2001 की जनगणना के अनुसार 80.5% लोग इस धर्म को मानते हैं, और इस धर्म को जो है मानने वालों की संख्या भारत के उत्तरी मैदानी भाग तथा मध्य भारत के जो है पठारी प्रदेश के उत्तरी भाग में अधिक केंद्रित है। इसके अलावा भारत के सभी भागों में इसकी संख्या पर्याप्त है, किंतु इसकी संख्या भारत के कुछ उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में एवं जो है संघीय प्रदेश लक्षद्वीप में बहुत ही कम है। लक्षद्वीप में देखा जाए तो हिंदू धर्मों की संख्या जो है बहुत कम है, मानने वाले की संख्या बहुत कम है, यानी वहाँ पर लोग हिंदू धर्म को अधिक नहीं मानते हैं। फिर भी देखा जाए तो अन्य धार्मिक समुदाय के भारत में वितरण बिखरा हुआ है, और ये कुछ ही क्षेत्रों में जो है संकेंद्रित है। ये भी बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बात रखता है कि कुछ ही क्षेत्रों में ये संकेंद्रित है। मुसलमानों की सर्वाधिक संख्या कुल जनसंख्या में अनुपात में जम्मू कश्मीर एवं लक्षद्वीप में अधिक है, यानी देखा जाए तो मुस्लिम धर्मों की जो मानने वाले व्यक्ति सब है वो जम्मू कश्मीर एवं लक्षद्वीप में सबसे अधिक है। वैसे मुसलमानों की सबसे ज़्यादा संख्या देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में है, और पश्चिम बंगाल में है, और बिहार राज्यों में है। तो ये तीनों राज्य काफ़ी महत्वपूर्ण है जहाँ पर मुसलमानों की संख्या सबसे अधिक है, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार राज्यों में। और इन राज्यों के अलावा मुसलमानों की संख्या राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा है, यानी राष्ट्रीय औसत जो है उससे ज़्यादा जो है मुसलमानों की यहाँ पर संख्या है। और असम तक केरल में भी है ये। अगर हम क्षेत्रीय वितरण पर नज़र दौड़ाएं तो ये स्पष्ट होता है कि केरल तथा जम्मू कश्मीर के अलावा इनका वितरण उत्तरी विशाल मैदान भागों में भी है, यानी देखा जाए तो मुसलमान हर क्षेत्र में विद्यमान है और उनकी संख्या काफ़ी इसके तादाद में है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तभी तो कहते हैं हम सब एक हैं। यदि बात करें हम ईसाइयों का सबसे ज़्यादा संकेंद्रित केरल में, देखिए ईसाई धर्म जो सबसे अधिक है वो केरल क्षेत्र में है। ईसाइयों के सबसे ज़्यादा जो है संकेंद्रण केरल क्षेत्र में है, और इसके बाद तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश का स्थान आता है, यानी इसके बाद तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश का स्थान आता है। कुल जनसंख्या में जो है उनका सबसे अधिक अनुपात उत्तर पूर्वी राज्य में है, खासकर मिजोरम, मेघालय एवं नागालैंड। जहाँ तक सिख धर्म के मानने वालों की संख्या का सवाल है, इनकी 3/4 संख्या जो है केवल पंजाब राज्य में ही संकेंद्रित है। इसके अलावा सिखों की संख्या हरियाणा, राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में भी है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड के तराई क्षेत्र और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो है दिल्ली में भी इसकी संख्या काफ़ी अधिक है,
तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि सिख भी जो है हर एक क्षेत्र में अपना दबदबा बनाए रखे हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। जहाँ तक बौद्ध धर्म का एवं जैन धर्म के अनुयायियों की स्थिति का सवाल है, तो इसका देखा जाए तो महाराष्ट्र राज्य ही ऐसा क्षेत्र है जहाँ दोनों धर्मों के मानने वालों की संख्या बहुत बहुत अधिक है। और इसके अतिरिक्त परंपरागत रूप से जाना माना निवास जो है जम्मू कश्मीर के लद्दाख हिमालय प्रदेश में धर्मशाला कि कहते हैं एवं सीमावर्ती जिले सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश तथा त्रिपुरा राज्य में है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर भी काफ़ी जैन और बौद्ध धर्म को मानने वाले कम नहीं है। इसी प्रकार महाराष्ट्र के अलावा जैन धर्म के अनुयायी की काफ़ी संख्या जो है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्य में भी काफ़ी है। फारसी लोग वैसे भी बहुत ही कम संख्या में है, जो महाराष्ट्र में मुंबई तथा उसके आसपास में ही पाए जाते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब देखिए इस सारणी में भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात को दर्शाया गया है। जनगणना 2001 में अनुसार जो है जनसंख्या को यहाँ पर दर्शाया गया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं अगर आप इस पर ध्यान से अगर नज़र दौड़ाओगे तो ये आपको प्रतिशत को दर्शाएगा, जो कि साफ दर्शाएगा। देखिए हिंदू की देखा जाए तो यहाँ पर 80.5% है और मुसलमानों की 13.6% जनसंख्या है भारत में। और ईसाई धर्म की कुल जनसंख्या देखा जाए तो 2.33 है, जो कि तीसरे नंबर पे ईसाई धर्म है। और सिख धर्म की बात करें तो 0.86% है। यदि बौद्ध धर्म की बात करें तो 0.76 है। और जैन धर्म की बात करें तो सबसे कम है, 0.40 है। ऐसे देखा जाए तो फारसी की जनसंख्या कम है, लेकिन वो अन्य में आता है, जो कि अन्य में जो है 0.83 है। तो ये सारी बातें काफ़ी महत्वपूर्णता की ओर इशारा करता है और दर्शाता भी है। इसमें धर्मों के विषय में जो है वितरण किस प्रकार है, इसके विषय में हमने विस्तार पूर्वक चर्चा किया और हर एक पहलू के बारे में जानने की कोशिश किया। तो आप इसी तरह त्रिपाठी सेंटर के साथ बने रहें, ठीक है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है, जिससे दूसरे बच्चों को भी ये सब सारी बातों का अवगत हो सके, ठीक है। और पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो शायद आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन भी प्राप्त नहीं हो पाएगा। क्योंकि बाद में अगर कोई टॉपिक रिसर्च कीजिएगा और सोचिएगा त्रिपाठी स्टडी सेंटर आ जाए तो शायद संभव ही नहीं हो पाएगा। तो इसलिए अच्छा है कि चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए। और सब्सक्राइब करने में कुछ भी नहीं करना है, आपने जो रेड बटन दिख रहे हैं उसको दबाइए और सब्सक्राइब ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो रेड बटन जरूर दबाइए जिससे सब्सक्राइब हो सके, ठीक है। अगर आपको कोई शिकायत है, कुछ सुझाव देना चाहते हो, कुछ विचार रखना चाहते हो तो कमेंट अवश्य कीजिए। कमेंट करने से जो है बातों को सुधारा जा सकता है।